आपको अनम्यूट करना पड़ेगा तृप्ता। I am unmuted. Can Okay. you hear me? Yeah, we Can you hear me? Yes, yes, yes. Good evening, friends. I welcome you all. I'm Tripta Tiwari here from Vashi Chai Masti Center to introduce Dr. Shushma Lahiri, today's presenter, a very good friend of mine. Dr. Shushma Lahiri is a qualified computer science professional who was director of the Institute of Engineering and Technology of Dr. B.R.A. University, Agra. She has guided many students to complete their PhD in computer science and presented many papers in national and international journals. After her retirement, she is based in Navi Mumbai and passionately enjoying her twin hobbies of traveling and photography using her computer techniques. Dr. Shushma's article, Nature Through the Lens, was published in our Dignity Dialogue. She has given presentations at Mumbai Photo Circles of and at Indian Women Scientist Association of IPSA of Mumbai. Nature's photography is a passion and love. She feels if you truly love nature, you will find beauty everywhere. Today's presentation will cover a vast range of places from interior of Maharashtra to distant Tasmania, Ladakh to Vashi mini seashore to California, and many more places. This will make you feel if you believe in God, its spelling is nature. This virtual tour will be a treat during this pandemic और आप घर बैठे बैठे दुनिया की सैर कर लेंगे. For any queries, please note down the number of the photograph and ask your question at the end of the presentation. Now over to Dr. Shushma Lahiri. Thank you. Shushma. Okay, yeah. Thank you, Tripta. Can you hear me? Yes, I can hear you. A very good evening to all of you. I welcome you on my presentation today. I'm honored to be here with the Dignity friends all over India. I sincerely thank Dignity Foundation and especially the coordinator of Vashi Chai Masti Center, Mr. Nand Kumar Patil, for giving me this opportunity. Today, I am going to share my photographs on Mother Nature. These photographs are my treasures. After my retirement, I am pursuing my hobby of photography, and all these photographs I have taken using my DSLR camera, Canon camera. I am always fascinated by the mesmerizing beauty of nature. Nature is immensely beautiful, but in our busy schedule, we are sometimes unable to appreciate its beauty. Tall, rugged mountains, magnificent cliffs, curvy, slopy valleys, dense forest, lush green grassland, sparkling rivers, deep blue lakes, brilliantly colored orange and red sunset, soft fragrance of flowers, rainbow on the water droplet on petals and leaves. The list is endless. In my opinion, no photograph or video can justify in displaying the true beauty of nature or any natural scene. When we go to these beautiful places, feel the serenity there, we find ourselves in a divine world. We find inner peace
and happiness and feel connection to God, the creator of nature. I would like to share my happiness through these photographs and hope that you will find the same happiness. तो चलिए आपको ले चलूं, आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर आओ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ जाशुआ ट्री नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में, and this is a natural wonder. Joshua Tree National Park is it spread on two desert, Mojave Desert and Colorado Desert, and it is a very huge park famous for the rock foundation, and Joshua tree is the native tree of this Mojave Desert. The tree resembles Old Testament prophet Joshua, raising his arm upward to pray, hence the name Joshua. This desert park is a wonderland of rocks. You can see rocks of different shapes, different size, and you can do the various activities here: rock climbing, bouldering, driving, because it is a huge park and you cannot go walking to visit this park. The area of this park is 5 times the area of Mumbai. Mumbai area is 600 square kilometer and this area is 3200 square kilometer. You can do camping, hiking, astrophotography, and wildlife photography. Here, various size, various texture, various shape of rocks can be seen. These rocks are named according to their shape. This is arch rock because this is the shape of arch. This is another view of the arch rock. And this height of this rock varies from 50 feet to 200 feet. So tourists can climb on the rock very easily. They are very smooth and easy to climb. This is skull rock, explains the human anatomy. And these rocks formed millions years ago. This is split rock, like it has split it, but it is not broken. So this is another rock, and there are several trails in the park. You can start from 1 kilometer trail to 8 kilometer trail. Now when we go further, there is a garden known as Cholla Cactus Garden. Cholla tree is the native plant of Colorado Desert. इसमें बहुत ज्यादा कांटे होते हैं और आपको अगर थोड़ा पास भी जाएंगे तो आपको कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन भगवान ने कांटे बनाए हैं। तो किसी ने ठीक कहा है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, बिकॉज कांटे प्रोटेक्ट फ्लावर्स। अगर कांटे ना हो तो फूल का प्रोटेक्शन कौन करेगा और फूल को प्रेडेटर से कौन बचाएगा? These are the flowers of the Cholla cactus. You can see the colors of flower are blue and green and very beautiful color. Now there are some places reserved for the camping, and you can do the camping here and listen the chirping of birds, walk on the trail, climbs on the rock, relax, take a nap, warm your food and eat your food, because in the whole park there is no place to buy food or water. You have to carry your food and your water. And if you are interested, you can have the stargazing and night trail photography. This is the small dam there. This is like a Yog Shem Vahamyam. चारों तरफ रेत ही रेत फैली है
लेकिन कहीं से नेचर ने पानी का इंतजाम कर दिया जिससे कि वहां पर वाइल्ड लाइफ और भी तरह की लाइफ फ्लोरिश होती है। तो इसके चारों तरफ बर्ड्स, टॉर्टाइज, स्नेक्स, स्कॉर्पियो, लिजर्ड, स्पाइडर, ये सब वाइल्ड लाइफ वहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप चलते हैं तो आपको वी आर इनसाइड द park, but we are going towards a beautiful city, which is a tourist city, and about 2-hour drive from the Joshua Park. तो यहाँ पर आप एक साथ देखते हैं कि दूर दूर तक barren hills हैं, no tree, but all of a sudden a large number of group of tree appears, and this is due to the oasis. Oasis में क्या, there is a fault in the earth, and somewhere from inside the water appears and trees appears. तो सारी पहाड़ियों में एक भी ट्री पौधा नहीं है, लेकिन एक जगह बहुत सारे पेड़ हैं। तो this is the earth fault, and this earth fault is specifically famous for its geographical reason. It represents the tectonic boundary between the Pacific plate and North American plate, and this is a mainly this fault is about 1200 kilometers long, and you can see this fault from the air. This photo I have not taken, but I have copied from somewhere else. So this fault is responsible for most of the earthquakes in California for the last 100 years. So America has established a fault observatory by dipping a 3-kilometer deep hole here and one minor hole 1.4 kilometer deep to forecast the earthquake and study about a earthquake. Now we are going reaching towards the beautiful city of Palm Springs, and you can see the sunset time and palm trees. You can see many palm trees. Here we have reached the Palm Springs city, and it is a tourist city. Most Californian people come here for spending their vacations because it is in the beautiful valley of Mount Jacinto. Mount Jacinto is a mountain, and there is a aerial tramway which carries you from 2000 feet to 8500 feet in only 10 minutes. 10 मिनट में। और ये जो ट्रामवे है ये बहुत ही स्पेशल है, ये 360 डिग्री रोटेट करती है। पूरी दुनिया में इस तरह की सिर्फ 2 ही ट्रामवे हैं, एक स्विट्जरलैंड में और एक यहाँ। तो जब आप ऊपर जाते हैं तो आप 360 व्यू हिल्स का, वैलीज का, सबका खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अमेरिका के दूसरे शहरों की तरफ। दिस इज ला होया कोव of San Diego City. San Diego City has many beaches, and this is a very beautiful beach. This beach is famous for snorkeling, for marine life, and for swimmer and scuba divers. This is sunset scene at La Jolla Cove, and you can see that a painter has used many color, blue, orange, red, so many colors, और उसने आसमान में सारे रंग बिखरा दिए हैं। मुझे सनसेट हर जगह का बहुत सुंदर लगता है और मैं सनसेट के फोटो हमेशा लेती हूँ जहां भी जाती हूँ। इसके बाद ये फास्ट शटर स्पीड का फोटोग्राफ है जो कि 1/1000 शटर स्पीड रख के ले गया है टू फ्रीज द मोशन ऑफ द वेव्स। इसके बाद आप चलते हैं, यहाँ पर ये स्वामी बीच है। तो ये इंडियन थे स्वामी परमहंस योगानंद, उनके ऑनर में इसका नेम है स्वामी बीच, और यहाँ पर उनके ऑनर में एक आश्रम है, एक क्लिफ टॉप पार्क है और मेडिटेशन सेंटर है। और स्वामी बीच में नीचे तक बीच तक जाने के लिए यू हैव टू क्लाइम डाउन 100 स्टेयर्स। यू कैन सी डेजर्ट प्लांट्स इन ऑन द सी बीच। तो ये आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि डेजर्ट प्लांट सी बीच पे कैसे आ गए। एक्चुअली ये प्लांट्स क्लिफ टॉप पे जो पार्क है वहां पर है, और हमने फोटो ऐसे लिया है कि ये लग रहा है कि बीच पर ही है। दिस इज ए सनसेट सीन, एंड यू कैन सी
the reflection of sun rays on the sea. This is lake outside the San Diego city, Pove Lake, and I want to take the reflection of the clouds. So this is a long exposure shot. In long exposure shot, you have to use the tripod. So I've used the tripod, and this is San Diego Botanic Garden. You can see the cactus are so beautiful. 7 flowers are flourishing in one leaf of cactus. And this is the fruit of cactus flower. तो ये एक पार्क की बाउंड्री पे लगे हुए थे हेज की तरह से, और बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था. This is another cactus, shape of human hand. ये भी बॉटनिक गार्डन में है. ये बैरल कैक्टस है. ये बैरल कैक्टस बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होता है, और ये इतना ग्रो होता है, हो सकता है कि 3 फीट तक इसका डायमीटर हो सकता है. तो लोग अपने घर में इसको लैंडस्केपिंग के लिए लगाते हैं. हालांकि इसमें कांटे बहुत हैं, लेकिन ये खूबसूरत बहुत लगता है. This is old man cactus because it is similar to the beard of an old man. This is पेम्फुटी फ्लावर, और ये रेड चिली की तरह लग रहा है, लेकिन ये भी बॉटनिक गार्डन का ही है. अब हम आपको ले चलते हैं कनाडा, जहां पर कि साल में बहुत समय बर्फ रहती है और टेम्परेचर -40 तक चला जाता है. यहाँ पर जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम ठंड कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं अब प्लेजेंट हो गया, बहुत प्लेजेंट मौसम है आज. तो ये शुगर बीच है, ये सिटी से थोड़ा दूर है, सेक्लूडेड बीच है, आप कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं. एंड दिस इज क्लोज टू शुगर मिल, इसलिए इसको शुगर बीच कहते हैं. दिस इज वर्ल्ड फेमस नायग्रा फॉल, एंड दिस इज बोट इज मेड ऑफ मिस्ट. तो फॉल्स के क्लोज जाने के लिए, मिस्ट को फील करने के लिए, इस बोट में आप बिल्कुल फॉल के पास तक जा सकते हैं. और ये रेड इसलिए दिख रहा है कि रेड कलर के रेनकोट टूरिस्ट पहने हुए हैं. दिस इज अनदर सनसेट व्यू ऑफ बर्लिंगटन सिटी. बर्लिंगटन सिटी में ये बहुत ही खूबसूरत सनसेट है. रिवर बह रही है और रिवर के ऊपर हमने सनसेट लिया है. दिस इज फॉल कलर्स ऑफ कनाडा. जब पतझड़ का मौसम आता है तो बहुत सुंदर फॉल कलर्स होते हैं, और पहले वो पत्तियां झड़ती हैं, पहले येलो होती हैं, फिर ऑरेंज होती है, और उसके बाद रेड होती है, और बहुत ही खूबसूरत रेड होता है. तो वहां के जितने भी फॉरेस्ट हैं आसपास, वहां पर लोग इसको फॉल कलर्स को देखने आते हैं. ये आपका रेड हो गया, और फॉल कलर्स को यहाँ पे देखते हैं. रॉकी माउंटेन और अल्बर्टा कनाडा में खास तौर से वहां पर जाते हैं. वहां बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है जहाँ पे आप फॉल कलर्स को देख सकते हैं. दिस इज ए बर्ड नियर द लेक इन द पार्किंग लॉट. तो लोग उनको खाना खिलाते हैं, तो ये पास में आके आपके हाथ से खाना ले जाती है. अब हम आपको ले चलते हैं स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, फुल ऑफ माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, पाइन और ओक फॉरेस्ट हैं, वाटरफॉल्स, वैलीज, लॉक्स. वहां पर लेक को लॉक कहते हैं. स्कॉटलैंड हैज अबाउट 30,000 lakes, fresh water lakes, and Ireland has 12,000 fresh water lakes. तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लश ग्रीन फॉर्मलैंड है, और आप इस तरह का सीन जब स्कॉटलैंड में जाते हैं तो आपको हर तरफ दिखेगा. ग्रीनरी, ग्रीन फॉर्मलैंड, वुडलैंड और माउंटेन्स और लीक्स, लॉक और वाटरफॉल्स. तो ये आपके वाइल्ड फ्लावर्स हैं, और यू कैन सी द शीप ग्रेजिंग एवरीवेयर, क्योंकि वहां पर अलाउड है. आप शीप वैली में, माउंटेन्स में कहीं पर भी ग्रेज कर सकती है. शीप is very profitable. Sheep farming is very profitable business for wool, for meat and for milk. ये आपका यहाँ पे वाटरफॉल तो बहुत खूबसूरत, मैंने एक वीडियो लिया है, अगर टाइम मिला आपको दिखाएंगे. दिस इज मल्टी कलर्ड माउंटेन्स. दिस इज शीप
फॉर्म। शीप फॉर्म में क्या करते हैं कि शीप डॉग ये लोग फार्मर्स रखते हैं, क्योंकि शीप बहुत दूर दूर तक चरने चली जाती है, ग्रेजिंग के लिए चली जाती है, और उनको वापस लाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो शीप डॉग ओबे द व्हिसल कमांड एंड वन डॉग कैन कंट्रोल ए हर्ड ऑफ शीप ऑफ 80 to 100 शीप। तो एक ही डॉग 100 शीप मोटी मोटी है लेकिन उनको कंट्रोल कर लेता है ड्यू टू द फियर साइकोलॉजी। शीप जो है वो बहुत ही डरती हैं डॉग से, और फियर साइकोलॉजी की वजह से 80 या 100 शीप को कंट्रोल करके वापस फार्मर के पास ले आता है शाम के समय। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, आइल ऑफ स्काई, pinnacles, lakes, and beautiful location for filming many TV serials. The Game of Thrones is filmed here. In Scotland, there are 900 islands, and they are connected by flight. दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट स्कॉटलैंड में है, जो कि 2 आइलैंड को कनेक्ट करती है, जो कि 15 किलोमीटर दूर है, और ये फ्लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 2 मिनट है। अब आप चलिए मेरे साथ आयरलैंड में, एंड दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को जियो ग्लोबल जियो पार्क। ये क्लिफ्स हैं, बहुत सारी क्लिफ्स हैं जो कि समुद्र की से 300 फीट और 700 फीट की हाइट पर हैं, और देयर इज ए क्लिफ वॉकिंग रोड अबाउट 18 किलोमीटर लॉन्ग। ये सब क्लिफ अटलांटिक ओशन पे है। यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा सी बर्ड्स हैं, और ब्यूटीफुल केव्स हैं, वॉकिंग ट्रैक है। तो टूरिस्ट को सलाह दी जाती है, टूरिस्ट आर एडवाइज्ड टू फॉलो ऑन द वॉकिंग ट्रैक, अदरवाइज देयर इज ग्रेट रिस्क ऑफ फॉलिंग इन द सी ड्यू टू द लैंडस्लाइड, बिकॉज क्लिफ का लैंडस्लाइड बहुत हो सकता है। दिस इज द वॉकिंग ट्रैक, एंड यू कैन सी द usual scene of sheep grazing everywhere. This is the another view of cliffs of Moher, and you can see often spot shark, whales, and dolphin. This is a O'Brien Tower, and this is the observation tower, and from this tower you can see the 360 view of all the cliffs and also of the sea. And about 1.5 million tourists come here every year. And one thing more, the Harry Potter and Half-Blood Prince, the shooting of this picture was also done here. Now we are going toward the Giant's Causeway. This is a hexagonal shape, 40,000 interlocking basalt column, and they are millions of years old. They are result of a ancient volcanic eruption. तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के शेप के हैं, हेक्सागोनल शेप, एंड ये इंटरलॉकिंग है। अब इस तरह से लगता है जैसे लेगो ब्लॉक्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और दे एक स्टेयर को फॉर्म कर रहे हैं, और वो जो सीढ़ी है वो धीरे धीरे जाके समुद्र में विलीन होती जा रही है। ये दूसरा व्यू है उसी का। तो ये नेचुरल क्रिस्टल्स हैं जो हमने नेचर ने बिखेर दिए हैं। These rocks, these columns are sometimes black in color, brown in color, maroon, and gray, various colors, and they are spread along the ocean about in 5 kilometer length. अब आप रिवर पे आइए। स्कॉटलैंड की फेमस रिवर है फर्थ। ये ब्रिज है फर्थ ऑफ फोर्थ, एंड दिस इज ए इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये 700 साल पुराना इंजीनियरिंग मार्वल है। अभी तक इसमें से इस फंक्शनल है ये, इसमें 100 से 150 ट्रेन रोज इस पर से गुजरती हैं। दिस इज अनदर सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, द ग्लासगो सिटी। ग्लासगो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, ऑल्दो द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड इज एडिनबरा। तो हमारे जितने भी सिटी हैं वो प्राचीन सभ्यता है, वो नदी के किनारे डेवलप हुई हैं। तो ग्लासगो इज ऑल्सो ए वेरी ओल्ड सिटी, एंड Clyde River, different, there are various bridges on the Clyde River. This is Squinty Bridge, because that bridge is not perpendicular to the flow of the river, it is oblique. So the name is Squinty Bridge. This is the day view of the River Clyde with the Squinty Bridge. And this is a arena for
multi-purpose indoor arena. This is along with the Clyde River, and we can see the various water sports from here. And I have taken the night photograph of light trails. कार की बैकलाइट होती है वो लाल होती है, तो हम जब स्लो शटर स्पीड पे लेते हैं तो वो लाइनें आ जाती हैं, इसको हम ट्रेल्स। तो अब हम आपको यूरोप ले चलते हैं। जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो नीदरलैंड है, राइन रिवर, एंड इट इज ए सनसेट इन ऑन द राइन रिवर. राइन रिवर इज ए वेरी ह्यूज रिवर फुल ऑफ वाटर. ये आपका नीस सिटी है और यहाँ पर बहुत सारी कैनोपीज हैं. तो यहाँ पर यू कैन रेंट ए बेड in the canopy, you can rent a canopy, music part, you can organize music party and any other type of party, dinner party, and it is a very beautiful beach. अब स्विट्जरलैंड चलिए हमारे साथ, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत कंट्री है. आल्प्स आप देख रहे हैं. आल्प्स में स्विट्जरलैंड में टॉप ऑफ द यूरोप तक एक ट्रेन जाती है, जो कि स्पेशल ट्रेन होती है, कॉकव्हील ट्रेन. उसके पहिए स्पेशल टेक्निक से बने, जो कि स्लोप पे जाने पर भी वो they do not slip, and the train can go up to the top of the Europe. And this is the paragliding of on the Interlaken, and tourists can enjoy the paragliding even you are a newcomer, because always there is a helper. There are 2 persons in the parachute. The other person is the guide and he can control all the flight. London, the famous bridge of London is Thames River. So this is the Thames River. और मूनलाइट में ये फोटो मैंने लिया है जब ट्रैफिक पूरा खत्म हो गया था, मिडनाइट के आसपास. एंड यू कैन सी द नाइट व्यू. ये रात, ये चांदनी फिर कहाँ, ये सीन वहां पे दिख रहा था क्योंकि ट्रैफिक खत्म हो चुका था. और दिस इज द व्यू ऑफ टावर ब्रिज फ्रॉम अनदर ब्रिज, नाइट व्यू. अब नाउ यू लंदन क्यू गार्डन. दिस इज ए क्यू गार्डन एंड दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. various colors flourishing on the same branch, so many colors. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये आपका है जायंट लिली. इसमें ऐसा लग रहा है कि ब्यूटीफुल बच्चों का पालना है और उसके सुंदर पिंक कलर की पाइपिंग लगी हुई है. बच्चे इसमें सुला दीजिए. ये इतना बड़ा लीफ है कि इसकी जो डायमीटर है वो 2 फीट से लेके 8 फीट 6 फीट तक होता है. और दिस इज द शैम्पू जिंजर फ्लावर. हमने इसका नाम जलेबी फ्लावर रखा है क्योंकि ये जलेबी की शेप का है. और ये क्यू गार्डन में है. क्यू गार्डन में सारी दुनिया के प्लांट्स को उन्होंने ग्लास हाउस बना के प्रिजर्व किया है फॉर स्टडी पर्पस, फॉर रिसर्च पर्पस. एंड दिस इज डक वाइन. द ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर इज दैट इट इज अबाउट 1 फीट इन डायमीटर, एंड यू कैन सी द वेरियस ब्यूटीफुल कलर्स like hand printed design. And this is the bud of duck vine flower. This is also very large. अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया, this is Blue Mountains. Oh, just a minute. Just a minute. ये ब्लू माउंटेन है. ये इसलिए ब्लू माउंटेन कहलाता है कि यहाँ पर यूकेलिप्टस के फॉरेस्ट हैं, और जो फॉरेस्ट जब वाटर वेपर्स और डस्ट से मिलते हैं और सनलाइट पड़ती है तो दे क्रिएट ए इल्यूजन ऑफ ब्लू हेज, और सारा एटमॉस्फेयर और सारे फॉरेस्ट और माउंटेन सब ब्लू दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम ब्लू माउंटेन रखा है. दिस इज द अनदर माउंटेन, कोस्को माउंटेन. दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया and it is also known as snowy mountain. People come here for toboggan, for ice sports, for skiing and rope way. वो स्कीइंग करके स्लोप से नीचे आते हैं, फिर रोप वे से ऊपर चले जाते हैं, फिर स्कीइंग करते हैं नीचे आने के लिए.
तो ये आइस स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। ऑल्सो दिस माउंटेन इज फेमस फॉर हॉट एयर बैलून। यहाँ पर हंटर वैली है इसके पास में, और वो बहुत ही खूबसूरत हॉट एयर बैलूनिंग के लिए है। दिस इज टबागन। टबागन क्या होता है, इसमें आप प्लास्टिक का एक शीट है, उसमें बैठ जाइए और रस्सी से आप पट के और स्लोप पे नीचे आ जाइए, और जब नीचे आके टबागन को, बहुत ही लाइट वेट है, फिर से हाथ में लेके ऊपर चले जाइए, बार बार आप स्लोप पे जाइए। तो इट इज ए फन even for a senior citizen like me and kids for 5 years or 10 years. My grandson and me both are enjoying in Tabagan. This is a lake near the snowy mountain, and यहाँ पर आके आप, when you come to this lake, you feel the serenity of this place. और आपको यहाँ पे लगता है secluded lake है, आपको लगता है कि यहीं पर आप रह जाइए। Now we are going to the एक माउंटेन, अनदर माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। तो भारत के नीचे, मैप के नीचे, जैसे लंका आइलैंड है, लंका तो दूसरा कंट्री है, लेकिन तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के अंडर में है, और तस्मानिया आइलैंड की कैपिटल होबार्ट है। दिस इज द माउंट वेलिंगटन एट होबार्ट। द ब्यूटी ऑफ दिस माउंटेन इज दैट दे हैव मेड ए व्यूइंग प्लेटफॉर्म ऑन दिस टॉप ऑफ द माउंटेन. You can see the whole city view of Hobart from this viewing mountain and also the sea view. पर आप जाड़ों में यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि स्नो कवर हो। car and go to the top of the mountain using your car. Now दुनिया के 10 ब्यूटीफुल बीचेस में से ये बीच है, बोंडाई बीच, और ये स्लो शटर स्पीड शॉट है। बहुत ही स्लो शटर स्पीड पे लिया गया ये शॉट। तो बोंडाई बीच फेमस है स्ट्रॉन्ग वेव्स के लिए, सर्फिंग के लिए। यहाँ की जो वेव्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं सर्फिंग के लिए। द लेंथ ऑफ द बोंडाई बीच इज अबाउट 4 किलोमीटर, ब्यूटीफुल वाइट सैंड, एंड 5 किलोमीटर तक ये बीच फैला हुआ है, और उन्होंने इसके किनारे एक कोस्टल वॉक बनाई है। एवरी टाइम दे ऑर्गेनाइज बिट्टू every time they organize a sculpture by sea show, inviting all world artists. This is a Bondi Bridge coastal walk view, overall view of the Bondi Beach. And this is another bridge of the Sydney, Brighton Lee Sand. ब्राइटन ली सैंड की ब्यूटी ये है कि यहाँ बीच पे बैठ के आप, सामने एयरपोर्ट है और प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ देख सकते हैं आराम से। कितने प्लेन 1 घंटे में लैंड हुए आप आराम से गिन सकते हैं, और बहुत ही सनराइज का टाइम है, ब्यूटीफुल सीन, एंड प्लेन इज लैंडिंग। दिस इज another beach of Sydney, Tronula Beach. So this is ocean pool. इस ओशन पूल में क्या है? स्विमिंग पूल contains the sea water, so you are safe within the swimming pool and enjoy the waves of the sea. इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी. This is a fishing is a sport in Australia, a very popular sport, and people spend time in having this sport. This is a very beautiful waterfall, Balaka waterfall. It is inside a park. It is inside a park, and this is safe for kids. बहुत ही अच्छा पार्क है, इसमें किड्स भी एंजॉय कर सकते हैं। आप आराम से फॉल के ऊपर भी चले जाएं, नीचे भी चले जाएं, सेफ है क्योंकि बहुत ही स्मॉल है, बट वेरी ब्यूटीफुल। नाउ दिस इज व्यू फ्रॉम द ग्रेट ओशन रोड। ग्रेट ओशन रोड से व्यू देखते हैं। तो ग्रेट ओशन रोड इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है, 300 किलोमीटर कोस्टल रोड अलोंग द सी। आप चलते जाइए और सी व्यू देखते जाइए।
300 किलोमीटर की ये है, विक्टोरिया सिटी से जाती है और ये सुबह से शाम तक टूरिस्ट इसको एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज 12 अपोस्टल। तो ये जो है स्टैक ऑफ रॉक्स हैं जो कि समुद्र के अंदर हैं और देवदूत इनको कहा गया है। तो 12 अपोस्टल ये पास पास हैं 12। इस व्यू में 2 दिख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वियर एंड टियर की वजह से 8 बचे हैं, लेकिन इनिशियली दे वर 12 अपोस्टल। नाउ दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पार्क, Auburn Park of Sydney, famous for its Japanese festival, the Cherry Blossom Festival. इस पार्क के अंदर वेरियस रोज, चेरी ब्लॉसम ट्री की बहुत सारी रोज लगाई हैं और हर साल इसमें बहुत ही खूबसूरत चेरी ब्लॉसम ब्लूमिंग टाइम पे फेस्टिवल करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर पार्क है। एंड दिस इज द आइकन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा हाउस। The people are enjoying the sunset scene of the Australia. और ये जो फोटो लिया है ये मैक्यूरी पॉइंट से लिया है। मैक्यूरी पॉइंट क्योंकि आप ओपेरा हाउस का फोटो आप वहां से लेंगे तो नहीं आएगा पूरा व्यू। दिस इज अनदर सनसेट सीन। जैसा मैंने बताया कि आई लाइक सनसेट, क्योंकि सनसेट जो सीन होता है वो गोल्डन आवर सीन कहलाता है। गोल्डन आवर में हम जो भी फोटो लें वो बहुत ही खूबसूरत आते हैं। अब हम पोर्ट्रेट लें या बिल्डिंग का लें या नेचर का लें या सनसेट लें, सब बहुत सुंदर आते हैं। गोल्डन आवर और मॉर्निंग का समय ब्लू आवर, तो गोल्डन आवर और ब्लू आवर दोनों ही बेस्ट टाइम है किसी भी फोटो लेने के लिए। दिस इज ऑल्सो ब्राइटनली सैंड बीच एंड एक कपिल इज एंजॉयिंग लेजरली सनराइज। तो फोल्डिंग चेयर अपनी कार में ले आए और सनराइज को एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज सनसेट व्यू ऑफ द फेमस हार्बर ब्रिज। So this photo I have taken from observatory. Beautiful sunset at the Harbour Bridge. And birds of Australia, this is sulfur crested cockatoo. Sulfur crested cockatoo is a bird. वो इतनी कॉमन बर्ड है जैसे हमारे यहाँ कौवे होते हैं, आपको हर जगह दिख जाएगी। ये बैकयार्ड में फोटो लिया है, आप बैकयार्ड में कुछ डाल दीजिए और वो खाने के लिए आ जाते हैं। तो ये इसका हेड क्रस्ट है। जब ये हैप्पी होती है या खुश होती है तो ये हेड क्रस्ट को खोल लेती है, और राइट में जो पिक्चर देख रहे हैं वो हेड क्रस्ट को डाउन है। हैप्पी बोज में लेफ्ट वाला है, बहुत खुश है तो वो उसको हेड क्रस्ट को खोल लेगी। नाउ दिस इज ए फ्लावर at the some place, and this is the beauty of this flower is this is about 1 feet in diameter, and this is in some hotel and birds are they get there, and this is a flower, and the name of this flower is this ginger, and this is on the beach of Sydney. This is another flower on the beach of the Sydney, torch ginger flower. And this photo I have taken in aperture priority by making the background blur. अब आप घूम चुके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अब आप वापस भारत आ जाइए अपने भारत में, और अपने भारत में लेह लद्दाख, तो जहां से हम जो टॉप ऑफ द यूरोप पॉइंट है उसकी हाइट 12,000 अप्रोक्सीमेटली फीट है, और हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। बॉम्बे टू लेह एक फ्लाइट है जो हमें बॉम्बे से सीधे 12,000 फीट हाइट पर लेह में पहुंचा देती है, और हमारी आगे की यात्रा यहाँ से शुरू होती है जो कि 24,000 फीट तक जाती है। तो इंडिया हैज हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो ब्यूटीफुल सनराइज और सनसेट सीन है, जब हम यहाँ पर गए तो हमने इसको देख के मुझे कुछ किसी लेखक की पंक्तियां याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाकर एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा कि दिल की वादियों में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों में अनगिनत कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू, आधी सोई आधी जागी हुई, आंखें मलते हुए देखती है।
लहर दर लहर, मौज दर मौज, बहती हुई जिंदगी और हर पल नई, और फिर भी वही, हाँ फिर भी वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है और कोई हसरत भी है, और ये एहसास है कि वक्त झरने सा बहता चला जा रहा है, ये कहता हुआ कि दिल की वादियों में चाहत का मौसम है और यादों की अनगिनत कलियां महकने लगी हैं। दिस इज खारदुंगला पास एट 18,000 फीट। यहाँ पर जून में भी टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है, और हम सैल्यूट करते हैं अपने सिपाहियों को जो कि हमारे देश की रक्षा करके यहाँ पर कारगिल में और खारदुंगला पास में और हाइट पर हमेशा रहते हैं। हम एक साधारण सिविलियन के लिए यहाँ पे 1 घंटा बिताना भी बहुत मुश्किल है। दिस इज पेंगोंग हिल एंड दिस इज द पेंगोंग लेक, जिसका कि आधा से ज्यादा हिस्सा चीन में है, और अभी पिछले दिनों यहाँ पे टेंशन भी चल रहा था। बट दिस लेक इज डीप ब्लू एंड वेरी ब्यूटीफुल, एंड दिस इज salt water lake, and in winters it freezes, so nobody can go here. It is mostly suited for ice sports in winter season. अब बंबई वापस आ गए, मार्शेस घाट। तो बंबई में इतनी मानसून होती है कि बारिश के सीजन में बहुत सारे वाटरफॉल्स बन जाते हैं, और रिफ्लेक्शन जब आप मॉरिशस घाट या लोनावाला जाते हैं तो आपको बहुत सारे हिल्स के रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। ये मैंने लिया है, ये टेम्परेरी वाटरफॉल है जो कि लोनावाला जाते समय आपको दिखते हैं। इस तरह के सैकड़ों वाटरफॉल दिखते हैं मानसून सीजन में। दिस इज अनदर वाटरफॉल, ये एक दूसरा टेम्परेरी वाटरफॉल है जिसकी कि ग्रीनरी के बीच में, आप बहुत सारी ग्रीनरी के बीच में आप वाटरफॉल देख सकते हैं। और दिस इज लॉन्ग एक्सपोजर, पूरी रात जागकर फायर फ्लाइज का फोटो लिया है। बॉम्बे में एक जगह है भंडार द्वारा लेक है, वहां पर बहुत एक सीजन में बहुत सारी फायर फ्लाइज आती हैं और बॉम्बे के लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है रात के अंधेरे में। तो जब ये फोटो हमने लिया तो रात के 11-12 बजे तक टूरिस्ट वहां पे घूम रहे थे, और हेडलाइट जुगनू की लाइट को डिस्टर्ब करती है, और वी कैन नॉट कैप्चर द लाइट ऑफ फायरफ्लाई, सो वी हैव टू वेट टिल 1 AM in the morning, and then we have captured this fireflies photograph. This is another long exposure photograph. पूरी रात जागकर इसको भी लिया है क्योंकि स्टार्स की मोशन को हमें कैप्चर करना है, और हम तारों से बातें करना चाहते हैं और वो बातें हमारी चांद ना सुने। तो हम इसलिए हम ऐसा दिन चूज करते हैं कि जिस दिन अमावस हो, चांद ना हो, और हम इसको स्टार ट्रेल्स को और मिल्की वे को कैप्चर करते हैं। एंड दिस इज ए शॉट, तो टेकन फॉर 3 hours. We take shot after every 30 seconds, and after them we 200 shots and we interpolate them. ये कंपोज शॉट है जो कि मेरे शहर आगरा का है, और मिल्की वे फोटोग्राफ। दिस इज ऑल्सो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट, पेंटिंग विद लाइट। तो हम, दिस इज ए लेक, एंड हम इस अंधेरे को एक कैनवस की तरह यूज कर रहे हैं, और वी आर पेंटिंग विद द लाइट एंड कैप्चरिंग दैट मूवमेंट ऑफ द लाइट इन द कैमरा। मानसून सीजन में आप आइए और वर्ली सी लिंक ब्रिज को देखिए, बारिश हो रही है और कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज द फेमस गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया विद लॉट ऑफ पिजन्स। जब भी आप यहाँ पे जाएंगे आपको बहुत सारे पिजन्स दिखेंगे, ऊपर भी नीचे भी सब तरफ, एंड ब्यूटीफुल बैक स्काई। संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली, ये मॉर्निंग व्यू है। सूरज की किरणें छन छन के पेड़ों से आ रही हैं, और सुबह सुबह जाके मैंने ये शॉट लिया है। दिस इज सनसेट शॉट एट द बीच, अलीबाग। एंड अब सनसेट सीन गोवा का,
जो कि गोवा का सनसेट बहुत खूबसूरत. एंड दिस इज अ सनसेट सीन ऑफ लोनावाला. You can see the monkeys in the Lonavala at the Tiger Point and various lookout points. This is a sunset scene in Registan of Rajasthan. And the sand dunes, beautiful sand dunes are there. And this sunset के बाद sunrise होता है. तो ये sunrise हो रहा है. और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सनराइज ऑफ कन्याकुमारी. तो इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन इंडिया सनराइज, क्योंकि यहाँ पे तीनों समुद्र मिलते हैं. और इन द फोरग्राउंड इट इज विवेकानंद मेमोरियल. तो बहुत ही सनराइज का व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है. फिर राइज के बाद फिर सनसेट होता है. हम केरल आ गए और सनसेट देख लीजिए केरल का. एंड दिस इज कर्नाला बर्ड सेंचुरी. कर्नाला बर्ड सेंचुरी में अगर आप सुबह जाएं तो आपको बर्ड मिलेंगी, लेकिन अगर आप देर से जाएंगे तो आपको एक भी बर्ड नहीं मिलेगी. तो हम वहां पे जब बॉम्बे से चले 2-3 घंटे में पहुंचे, हमें एक भी बर्ड नहीं मिली. लेकिन आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल फैमिली विद द 2 kids. And these are the pollinators of nature: beetle, bee and butterfly. This is beetle and this is bee. In all these photos have taken in Mumbai, and this is butterfly. So without these pollinators, the nature cannot survive. So I have taken these beetle, bees and butterflies. This is a butterfly. The photo is taken as Navi Mumbai Sport Association Garden. It is very close to our house, 5-minute walk, and various colored butterfly, orange, white, yellow, green, so many butterfly you can see there. This is also very close to our place, mini seashore, and the kingfisher, the mini seashore. Mini seashore is एक वहां पर उन्होंने सी वाटर के चारों तरफ एनक्लोज करके एक लेक बना दी है, उसके चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बना दिया है. तो ये मिनी सीशोर की जो वॉकिंग है वो 2.2 किलोमीटर की है. आप इसके चारों तरफ वॉक करिए और म्यूजिक सुनिए, एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं. और a large number of migratory birds arrive here, stay here for few days, few months. And this is also mini seashore, and you can see the beautiful bird flight and a splash of water. And this is the lily in Bombay, some pond near Bombay. This is a friend place, and this is lobster claw, Navi Mumbai. And this is also the aperture priority shot. Aperture priority means background blur in the camera itself. We need not to do anything else. In the camera, background is blurred so that the flower looks more prominent. This is also the same shot. Background is blurred in camera. And मानसून सीजन में बॉम्बे में कम से कम 30-40 वैरायटी के मशरूम निकल आते हैं. मिनी सीशोर घूमने जाइए या सागर विहार घूमने जाइए, विच आर वेरी क्लोज टू माय हाउस. तो मशरूम्स आपको बहुत वेरियस कलर्स के, वेरियस शेप्स के, वेरियस साइज के मशरूम्स मिलेंगे. दिस इज ए मशरूम ऑन द ट्री. तो ये जो मशरूम ट्री पर है ये इतने सारे थे, येलो कलर के भी थे, ब्राउन कलर के भी थे. लेकिन जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो ये मशरूम भी खत्म हो जाते हैं. एंड so many mushrooms I have taken. Due to the shortage of time, I cannot show you, but about 30 variety of mushrooms I have taken. This is the beard tongue flower in the Bombay, and this is bird of paradise taken at Indian Women Scientist Association Learning Garden. Indian Women Scientist Association has developed a garden for students for learning the garden. So these photographs of bird of paradise and this I have taken there. This is wild snake root, and
इसकी खूबसूरती मुझे लगी जैसे गुलाब जामुन रख दिए हैं आपके सामने किसी ने। ये मुझे बहुत, ये वाइल्ड फ्रूट है एंड दिस इज अंदर फ्लावर फायर स्पाइक। This is Chinese hat. This is also in the Indian Women Scientist Association Learning Garden. And this is Kiss Me Quick flower. The name is Kiss Me Quick flower and it is also in the IFSA. Pansy flower and making the background blur. And this is also wildflower, red seed dandelion. And it is very small, about a few millimeter, 4 millimeter, 5 millimeter. ये रतन कुंज सीड है, ये हमारे सेक्टर 6 वाशी में बहुत ज्यादा हैं। बच्चे इनसे खेलते हैं, लाल रंग के सीड्स होते हैं और इसका ट्री बहुत ही बड़ा होता है। दिस इज वाटर लिली and I have taken the reflection of the water lily and leaves of the. Thank you very much. I hope you will like my this. Thank you, Sushma ji. Thank you. Thank you very much. It was a very nice. Thank you. very We good enjoyed. photograph. enjoyed. Walk Wow, around the wow. world with सुषमा, you. मजा आ गया। I want to Wow. show a small video of 4 minutes. Very nice, ma'am. You allow me. One minute, Sushma ji, Sushma ji. वेरी गुड एफर्ट। सुषमा जी, इससे बढ़िया कोई नहीं। बहुत अच्छा था। सुषमा जी, वेरी अमेजिंग। वो विवेकानंद मेमोरियल का फोटो दिखाई नहीं दिया। विवेकानंद Very good, मेमोरियल। Sushma. Great. Fantastic, really superb. Nice What a explanation. what a technical photography. Beautiful. Thank you. Thank you very much. सुषमा जी, वो Thanks for you. बहुत अच्छा था। आपको शॉट लेने का जो हुनर है भगवान ने दिया है। I have started after my retirement. After my retirement, I have started this. वो Passion before, I think. To the video. We went in the dreamland, no? Next time, I will suggest, in India, Rohtang Pass, Manali Rohtang Pass is there. Kashmir, one of the things. So I think if you can, next program, Kashmir is there, and Manali, Rohtang Pass, and Okay, please show the video. सुषमा जी, वो स्वामी हाँ जी, विवेकानंद मेमोरियल हाँ जी। फोटो नहीं दिखाई दिया। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल और फिर वीडियो दिखाई है। पहले आप वीडियो अच्छा। दिखा रहे थे ना पहले। Can you? I get it, but To the video. Yeah, can you show that video? Video, yeah, please. I brought this video first. Sushma ji, can you show the video? 4 minutes. Yes. सुषमा जी, very beautiful photographs. वंडरफुल। सुषमा जी, आपने तो हमारी कोरोना की बोरियत दूर कर दी सारी। ये जो आप देख रहे हैं ये ओशन पूल है। आप सी के अंदर ओशन पूल के स्विमिंग पूल के अंदर सेफ हैं, वेव्स के साथ स्वे नहीं हो सकते और Hello, आप ma'am. Show the video. वेव्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वेव्स हैं। ये टेम्परेरी वाटरफॉल है बॉम्बे का, जो कि मैंने लिया है, जो लोनावाला के रास्ते में है। यहाँ पे hundreds of temporary, anybody living in Bombay knows hundreds of waterfall appear in monsoon season. This is waterfall which I have taken in Scotland. ये स्कॉटलैंड का वाटरफॉल है। जो रास्ते में जा रहे थे तो हमने वाटरफॉल अपने ड्राइवर से बोला तो ये स्कॉटलैंड का वाटरफॉल है और स्कॉटलैंड में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। That is called the city of lakes. Yeah. Scotland is called Yeah, the yeah. city of lakes. Yeah. So this Beautiful is place. Bondi Beach, and you can see the strong waves of the Bondi Beach. Yes. Surfing, Yeah. people doing surfing, and birds also. You can see so many birds. Yeah. ये See, बोंडाई बीच sea का birds. बोंडाई बीच में क्या बात है कि वहां पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और लहरें इतनी ज्यादा हैं, तो वहां पे उन्होंने एक रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है और जो कि 24 घंटे उनको रेस्क्यू करता है। जो कि डूब रहा है वो उसमें बोल नहीं सकता, तो वो उनको रेस्क्यू करते हैं और
पर ईयर 2000 to 4000 पीपल वो रेस्क्यू करते हैं गौंडाई बीच पर. So This is a beautiful. video in San Diego Botanical Garden. Yeah. Beautiful. ब्यूटीफुल. Beautiful. दुनिया की सैर करा दी आपने. हाँ, नहीं सुषमा जी आप सैर करा दी दुनिया की. नहीं, हम तो लगता है आपको अच्छा लगा? Thank you very much. आप भगवान के दर्शन कराती है दर्शन. We are in another. ये another world. पैरेट का लिया है, ये मैंने दुबई में लिया है. दुबई का एक बॉटनिकल गार्डन है, वहां पर लिया है मैंने ये. Very nice. ये अभी आ रहा. आप शायद म्यूट है सुषमा जी. हाँ आप आ रही है, बताइए. आ रही. ये जो पैरेट है ये दुबई का है. ये दुबई का है पैरेट. और ये मैरीन कंजर्वेशन सेंटर है यहाँ पर एरोली में, नवी मुंबई में. ये वहां का है. यहाँ पे about 1 million flamingos arrive every year. तो ये फ्लेमिंगोज मैरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर एट एरोली, नवी मुंबई. This is panda eating bamboo at San Diego Botanical Garden. And this is bees in my house. You can see bees. The video, bees in my house. और मैडम आप बी कल्चर के बारे में थोड़ा मेंबर्स को बोलिए मैडम. हम भी कर सकता है क्या घर में? कैसा करना थोड़ा आपको जानकारी? I don't know, मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपने आप बना लिया था. मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में. ये जो है ये शाम, ये टाइम लैप्स वीडियो कहलाता है. ये हमारे घर के पास बीच है सागर विहार. तो ये टाइम लैप्स वीडियो मैंने बनाया है इवनिंग का. ओके सुषमा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. मैं मिस्टर रमणी अय्यर को बोल रहा हूँ. When you come again, we'll see. Want to see you again and again. Thank you very much. Yes. Yeah. It's so lovely. Really. सारा दिमाग थकावट दूर हो गई. थकावट दूर, you know. मेरे पास बहुत ज्यादा वीडियो और थे, मुझे छानने पड़े. यूरोप और स्विट्जरलैंड के एक 2 रखे क्योंकि टाइम की लिमिटेशन की वजह से. It was a wonderful show. Wonderful. You all very much. आपने तो हमें दुनिया की सैर करा दी. थैंक यू. इसीलिए मैं शुरू में कहा था हजारों की सैर कराते. नहीं, भगवान के दर्शन भी करा दिए सुषमा. Without visa and passport, you took us the world. In the pandemic, everything is virtual. Pandemic time में हर चीज virtual है. I am requesting Ramani Iyer to give a vote of thanks. Mr. Ramani, please. Friends, thank you. We have a scintillating exhibition of photographs. Rashmin yaar, Rashmin. With a few videos. Fantastic. Everybody, yeah. North Range, the Satara, Utsav Chowk, and Agra, we cannot see with our naked eye, and it has to be perceived through the lens. And some of us who have been watching animals and plants channels know very well how difficult it is to take photographs and videos of nature, particularly moving animals. It was when Dr. Sushma has captured these picturesque locations for us. These days of pandemic, we couldn't move out of our own place freely, and then it is really interesting that all these places, starting from Ireland, England, Scotland, and down to Ladakh, and the local seashore, mini seashore at Vashi, they have been brought to our screens.
Thank you, Sushma ji, for the excellent photography, the nice slideshow, sprinkled with appropriate comments with Kavitaye, and also the narration was just to the point and then increased our curiosity to visit these places. Thanks to the viewers of all the Chai Masti centers, Teni Rarangams, Chavadis, and Adda centers all over India for your participation in this event, which is a great source of encouragement to all of us. A national event on this scale cannot be organized without advanced planning and active support of the head office team of Dignity Foundation. Ms. Kusum, the Mumbai chapter head, Dr. Sujay, Senior Operating Officer, and Mr. Rajesh, Zoom link coordinator, under the guidance of Dr. Sheila Srinivasan, the great visionary founder of Dignity Foundation, have made this program possible. Last but not the least is Chai Masti Center Vashi coordinator, Mr. Nandakumar Patil. He has a knack of spotting talent, particularly the latent talent in the dignitarians, and then creating a platform for them to shine very well. Thank you, Ms. Nandu. Thank you all. Namaskar. Thank you so much. Thank you Can I very ask much. one question, All Sushma friends, ji? thank you very much Thank for you very much. coming And to my can I show. ask one question to you, Thank Sushma you, ji? Sushma. Sushma, no